Good evening to everybody. The topic which we are discussing for the last 2 days, that is the biodiversity in India, right? So भारत में जो biodiversity है, जो जैविक विभिन्नता है, we are discussing that topic for the last 2 days. Okay. So yesterday we were discussing about the some critically endangered species as per the updated red list of IUCN, right? So जो नए students हैं, let me tell them first of all that right. So there are three important things. One is the chapter we are discussing, that is the biodiversity, right? So this is the name of the chapter, which we are discussing. By the term biodiversity, we mean the variability, variance, and variability, right, among the species, right, among the species, right. Right. So जो भी different type के जो organisms हैं, means life है, that may be the plant life, that may be the animal life, उनके अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, right? और एक चीज इसके अंदर और आती है, that is the diversity of the ecosystems also, right? Ecosystems के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नता, right? Diversity of ecosystems also, right? So now, what is ecosystem? Perhaps you, the new students, may not be knowing about the ecosystem. That what is the meaning of the ecosystem? Right? So what is ecosystem? Let's suppose this is a geographical area, right? So let me change the color. Right. So let's suppose this is a geographic area, right? A region, a geographic area, right? So in this geographic area, in this region, there are two types of factors. One is, we can say, the biological life, right? One is the living organisms are there, right? So जो भी living organisms हैं, एक तो इस region के अंदर ये होंगे, right? So living organisms के अंदर there may be the plants, there may be the animals. Let's suppose these are the animals, right? These are the living organisms, okay? And there may be the plants as well. These are the trees, plants, right? These are the living organisms, right? And apart from that, there may be some non-living organisms also, right? So non-living factors. So वो factors जो non-living हैं, right? Non-living factors, right? So beta, what are the non-living factors? Among the non-living factors, we include, you can say, there is the soil, right? There is water, right? There is air. So all these factors are the non-living factors, right? So beta, far you can say living a life, right? So the various organisms have to interact between, or have to interact among themselves, right? Number one is the living organisms, right? Living organisms interact among themselves, right? So जो भी living organisms हैं, वो अपने आप में interaction करते हैं, right? और एक दूसरे के ऊपर उनकी dependability है, and plus what is else there, right? So the living organisms interact with the non-living factors also, right? They interact with the non-living factors also, right? They interact with the non-living factors also. Okay, so this is known as the ecosystem, non-living factors also. Okay, so now if we have to define the ecosystem, that what is the ecosystem, we would say that ecosystem is a geographical region, right? Is a geographical region
okay, in which the living organisms, the living organisms, right, interact among themselves and with the non-living factors in the non-living factors, right? So that is known as the ecosystem. Okay, so these two definitions are quite important, right? Here, as far as the definitions are concerned. Okay, so now the next important point or the next important thing which is here, right? So that is we will now discuss about the right. So various you can say you know that right the various living organisms, right, are under threat, right, from due to various factors, right, due to various factors, right. So जो life है, life को risk रहता है due to various factors, right, like plants को risk है कि हम उनको काट देते हैं, right, plants को risk है कि sometimes climate change हो जाता है, right, similarly जो भी जंगली जीव है, right, उनको रिस्क है कि समटाइम्स हम जंगल काट देते हैं, हम पेड़ काट देते हैं, राइट, हम वहां पर अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, जहां हम पार्टीशन कर देते हैं फॉरेस्ट्स की, सो दैट इज वाई उनको भी रिस्क रहता है, राइट, और जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, राइट, उनको भी रिस्क है, किस चीज का मतलब दैट वाटर इज गेटिंग यू कैन से पॉल्यूटेड डे बाय डे, उनको भी रिस्क है। सो हर एक यू कैन से ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर मतलब एक डिग्री तक एक थ्रेट होता है, राइट। सो नाउ you can say on the basis of the we can say threat perception, right, on the basis of the threat perception the organisms are categorized into various classes, right, into various classes, right। So उनको हम थ्रेट के अकॉर्डिंग उनको हम कैटेगराइज करते हैं, कैसे, इनटू द वेरियस क्लासेस, राइट। सो व्हाट आर द वेरियस क्लासेस इनटू व्हिच वी कैटेगराइज दोस, राइट। सो फर्स्ट क्लास दैट इज द एलसी मींस लीस्ट कंसर्न स्पीसीज, राइट, जिनको अभी तक इतना ज्यादा खतरा नहीं है, right, these are the least concerned species. So this is the first category of the threatened species from the bottom, if we say, right, and the next category of the threatened species, right, so that is we can say anti means near threatened species, right, जो right जिनको threat है, right, जो अभी threat के नजदीक हैं, right, उनकी एग्जिस्टेंस को threat हो सकता है आने वाले टाइम में, so that is the near threatened type of species, right, and the third category in this that is known as the vulnerable species, right। So vulnerable वो हैं जिनको threat you can say perceive हो चुका है, right, so उनकी population you can say जो है मतलब अभी उसको threat है, right, so it may go extinct in the days to come if the proper action is not taken, right, कि अगर हमने proper action नहीं लिया तो आने वाले दिनों में जो ये जो लाइफ है, ठीक है, ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो वी कैन से एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर ध्यान नहीं दिया तो, राइट। सो दैट इज द पॉइंट देयर, लीस्ट कंसर्न वल्नरेबल स्पीशीज, राइट, एंड देन देयर आर द एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट, सो एंडेंजर्ड के बाद आता है देयर इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट। सो क्रिटिकली endangered species, right, so critically endangered आ जाते हैं। critically endangered के बाद जो next category आती है वो आती है extinct in the wild, right, extinct in the wild, right, कि ये मतलब जो अपने natural habitat में extinct हो चुके हैं, और इसके बाद जो आता है that is the extinct category of species, कि ये अलोप हो चुका है, ये कहीं भी नहीं है धरती के ऊपर ये स्पीसीज, राइट। सो बेटा इस तरीके से हम इनकी कैटेगराइजेशन करते हैं, राइट। सो
we were discussing about the critically endangered species. So critically endangered species are those species, right? So we can say who who are on the verge of, right, uh, being extinct in the wild, right? So critically endangered species वो species हैं जो अभी उनके नेचुरल हैबिटेट में से मतलब अलोप होने वाले हैं, राइट? सो उनकी जो उनका लॉस है वो मतलब इतनी तेजी से हो रहा है कि बहुत जल्दी वो मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट जो भी उनका नेचुरल जो जो प्लेस है जहां पर वो यू कैन से पाए जाते हैं, तो वहां से वो बहुत जल्दी खत्म होने जा रहे हैं। सो उनको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, राइट? So we were discussing about the critically endangered species since you can say yesterday, right? So we are discussing about this. Okay, so this is about the critically endangered species, right? So beta इसके according, right? फिर गवर्नमेंट्स ने अपनी पॉलिसी बनानी होती है, गवर्नमेंट ने उनकी कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देना होता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज डन, राइट? सो बेटा ये जो क्लासिफिकेशन का जो काम है ये कौन करता है? ये बेटा एक तरह की एनजीओ है। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, विच डज द जॉब ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, राइट? एंड दैट एनजीओ विच डज द जॉब ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, ओके? So that NGO is known as, we can say the, right? So that NGO is known as the IUCN, right? So उस NGO को हम क्या बोलते हैं बेटा? That is known as IUCN, right? So IUCN means क्या होता है? International Union for Conservation of Nature, right? इसकी जो फुल फॉर्म बनती है that is International Union for conservation of nature, right? Conservation of nature, right? So इसमें बेटा ये रहता है, right? So I think this is clear to you। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको थोड़ा इतना बताना जरूरी था आज मेरे लिए, सो वो मैंने आपको एक बार बता दिया, राइट? एंड मैं थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स पीछे जाऊंगा, राइट, क्योंकि जो कल हम कर रहे थे, राइट, मैं वहां जाऊंगा थोड़ा सा पीछे, राइट? सो मैं जाना चाहता हूं साइबेरियन क्रेन से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? सो साइबेरियन क्रेन, दिस इज द इमेज ऑफ द साइबेरियन क्रेन, राइट? सो साइबेरियन क्रेन क्या है? एक बर्ड है, एक माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड वो बर्ड होते हैं जो कि सर्दी के दौरान, राइट, या ड्यूरिंग द ईयर इन एनी सीजन, राइट, they you can say shift from their natural habitat to other places, right? उनको हम माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं जो अपना ठिकाना छोड़ के मतलब कहीं और चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट, फॉर ए पर्टिकुलर सीजन, राइट? और वो रेगुलरली आते हैं, ये जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, राइट? सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर विच इज देयर, दैट इज द साइबेरियन क्रेन के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कल मैं आपको बता रहा था कि ये जो साइबेरियन क्रेन है, दिस इज नोन एज स्नो क्रेन आल्सो, राइट? बिकॉज ये रशिया की तरफ से आती है, राइट? साइबेरिया इज ए वेरी कोल्ड रीजन, राइट, इन द वर्ल्ड। ये नॉर्थ पोल के पास का रीजन है, रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है जो, उसको हम साइबेरियन रीजन कहते हैं, ईस्ट की तरफ। यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, और बिकॉज दिस बर्ड, राइट, इज from that region, from very cold region, that is why this is known as the Siberian crane, right? So there are two branches of populations of the Siberian crane. Siberian crane की जो population है उसकी दो branches हैं, one is the eastern branch and second is the western branch, right? And one central branch is also there, right? So eastern branch and central branch, and western branch, right? So beta इनकी जो वेस्टर्न ब्रांच है, राइट, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं, राइट, कि ऐसे होता है बेटा, दिस इज द, राइट, ये हम इनको डायरेक्शंस कहते हैं, राइट? ये साउथ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन ले लेते हैं, राइट? इस तरफ हम ईस्ट डायरेक्शन ले लेते हैं,
and towards this side, let me take the west direction, right? So these are the various directions, right? So beta ये कहाँ से आते हैं? ये इट मीन्स ये नॉर्थ की तरफ से आते हैं, राइट? रशिया में से आते हैं, राइट? और वहां से बेटा इनकी क्या होता है, इनकी दो ब्रांचेस आती हैं, राइट? एक ब्रांच तो इधर वेस्ट वाली साइड पे एक ब्रांच है और दूसरी ब्रांच इधर आती है ईस्ट वाली साइड पे, राइट? सो ऐसे इनकी दो ब्रांचेस हैं पॉपुलेशन की, राइट? सो जो इनकी बेटा ये वाली ब्रांच है, ईस्टर्न ब्रांच है बेटा, राइट? सो इट माइग्रेट्स टू चाइना, ये चाइना तक आती है। और लेकिन बेटा जो इनकी वेस्टर्न ब्रांच है, right? So you can say, right, it covers a very long journey, more than 5,000 kilometers long journey, right? So it you can say travel, right, and it reaches right via Iran, right? It reaches to Iran and we can say India also, right? So ये जो बर्ड है ये सर्दियों में मतलब इंडिया में आता है, right? Iran and India. So this is about the western branch, right? So ये कब माइग्रेट करते हैं? They migrate during the winter season, right? Because वहां पर बहुत सर्दी होती है, that is why अपने आप को बचाने के लिए ये winter season में they migrate towards the, you can say, lower latitudes, right? So eastern population migrate to China, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, and western population migrate to Iran and then India, right? So western population इनकी ईरान में और इंडिया में आती है, right? So their population is declining fast due to, इनकी population में कमी आ रही है, बहुत तेजी से इनकी population गिर रही है। Why? Number one, hunting along the migration routes, right? क्योंकि ये bird है, इतनी लंबी जर्नी you can say travel करके आता है, ये continuously तो ये फ्लाई कर नहीं सकता, राइट? सो बेटा दैट इज वाई ये बीच बीच में से, ठीक है, वी कैन से ये अपने बेटा स्टॉप करते हैं, राइट? मान लीजिए यहाँ चले, यहाँ आके स्टॉप किया, राइट? फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ आके स्टॉप किया, राइट? फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ आके स्टॉप किया। सो बेटा दिस माइग्रेटरी रूट पे, राइट? सो बेटा इन बर्ड्स की लोग हंटिंग करते हैं, राइट? इनको मार लेते हैं, इनका शिकार कर लेते हैं, right? For food purpose, for meat purpose, right? So one point is this, right? And second is the habitat degradation, right? So बेटा जहां जहां मतलब ये जो birds हैं ये रहते हैं, that is the habitat, right? So उसकी जो क्वालिटी में थोड़ी गिरावट आ रही है, that is why जो भी environment है इनके जीने के लिए वो environment की degradation हो रही है, that is the another reason. And next is they, you can say, inhabit in shallow marshlands. Marshland, so बेटा दलदल वाली जमीन होती है, right? Marshlands and wetlands, right? Wetlands जहां पर जो पानी का जो we can say मतलब सतह है, लेवल है, that is very near the surface, right? So वो wetland है, and they are, you can say, omnivorous, right? Omnivorous वो होते हैं जो कि you can say एनिमल्स को भी खाते हैं और जो वेजिटेबल भी खाते हैं, राइट? एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट? सो दे लिव ऑन द प्लांट फूड एज वेल एज द एनिमल फूड, सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द, वी कैन से, omnivorous, राइट? सो बेटा इस स्लाइड पे जो एग्जामिनेशन के लिए जो हमने ध्यान में रखना पॉइंट, राइट? सो क्या हमने ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के लिए, राइट? सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट which we should bear in mind for our examination purpose, that is the Siberian crane is a critically endangered species, right? So एक तो बहुत important बात ये है, right? Critically endangered species, right? So one is this, okay? So एक तो हमने ये ध्यान में रखना है। दूसरा है this is a bird species, ये तो चलो आपको मालूम ही है। तीसरा है दिस इज ए माइग्रेटरी स्पीसीज, राइट? माइग्रेटरी मीन्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन ये माइग्रेट होते हैं, राइट? सो माइग्रेशन इनकी क्या होती है कि ड्यूरिंग विंटर्स, राइट? ड्यूरिंग विंटर्स दे माइग्रेट टू, राइट? माइग्रेट टुवर्ड्स द लोअर लैटिट्यूड, राइट? ये इक्वेटर की तरफ आ जाते हैं
इसको हम लोअर लैटिट्यूड्स कहते हैं, राइट? दे migrate towards the lower latitudes. Okay, so this is the point, and the next point which is important here that they like, right, marshes and wetlands. ये वहाँ पाए जाते हैं. एक एक ये ज्यादा important point है इसके लिए, right? And the next important point क्या है कि there are two branches of their population, right? इनकी population की दो branches हैं, right, of their population. Okay, so दो branches हैं, right? So one branch of population that is known as the eastern branch, right, which migrates to China, right? And the second branch that is the western branch, right, which migrates to Iran, right, and India, we can say, right? एंड बेटा इन दोनों में से, राइट, इन दोनों में से बेटा जो जो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों में से ये जो वेस्टर्न ब्रांच है, राइट, सो दिस इज अंडर मोर थ्रेट परसेप्शन, राइट? सो द वेस्टर्न ब्रांच is under more threat, right? Is under more threat than the western branch, than the eastern branch. So one point is this, okay? And the next point is that, right, the longest journey, right, traveled during migration, right, traveled is by the western branch, right, is by the western branch, right? So these are some important points for your examination purpose, right? The longest journey is traveled by the western branch, right? So please note all these points. These are important points, right, for your examination purpose, we can say. Okay, so that is there. Okay, so now the next slide, I will move on to the next slide also, right? So as far as the next slide is concerned, right, we can say that, right, so again, more about the Siberian crane, right? So beta, the next slide is that, you can say, okay, the Ural Mountains and the Ob River, right? So these are the two places, Ural Mountains and the Ob River, right, are the two important places which are the breeding areas of the Siberian cranes, right? Western Siberian cranes और the Siberian cranes के लिए जो breeding area है, breeding area means, you can say, right, so they lay their eggs, right? So they lay their eggs in that area, right? They lay their eggs, right, in those areas. Breeding area means, right, and do hatching there, right, and do hatching there, right? बच्चे निकालते हैं eggs में से, eggs वहां देते हैं ये. So please bear this in mind that you can say these are two important right, places. One is the Ural Mountains, right, and second important place is we can say the Ob River. These are the two breeding areas of these, right? As far as the Ural Mountain is concerned, right, so Ural Mountains lie here, right, in almost north-south direction, we can say, right? So this can be said as we can say Ural Mountains, right? So this is the Ural Mountains, right? On the map, it is here, right? So as far as the Ob River is concerned, right? So here you can see the Ob River, right? So Ob River, this is Ob River, right? This is Ob River, right? So we can say that that Ob River is moving like this, right? And this is the Yamal Peninsula. Sometimes this question can also be asked that where is Yamal Peninsula? Yamal Peninsula फिर कहाँ है? For your examination purpose, you should bear this in mind that Yamal Peninsula is in we can say Arctic region, right? So it is in, you can say, Arctic region, right? And surrounded by Karachi, right? And surrounded and bordered by, we can say, Karachi, right?
bordered by Kara Sea, right? So please bear this in mind, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको मैं ज्योग्राफी भी साथ ही पढ़ा रहा हूँ, जो भी रेलिवेंट एरियाज आ जाते हैं, राइट? सो दीज आर द hatching places or the breeding places of these, you can say, birds. Okay, so and the next slide, that is again about the Siberian cranes, more information about them, right? So as far as this is concerned, that western branch, right, of migratory Siberian cranes cover the longest distance to reach India. ये इंडिया में आती है और ये longest distance cover करती है. इंडिया में ये कहाँ विजिट करती है? मेनली ये विजिट करती थी भरतपुर सेंचुरी इन राजस्थान, राइट? आजकल उसका नेम चेंज करके, राइट, क्यूलाडियो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, राइट? पहले इसका नाम क्या होता था बेटा? दैट वाज द भरतपुर सेंचुरी. दैट वाज द नेम ऑफ दिस, यू कैन से, प्लेस, राइट? सो भरतपुर सेंचुरी होता था पहले. सो नाउ इट्स नेम हैज बीन चेंज टू दिस, राइट? So Bharatpur Sanctuary, that was the main destination of this species, right? So but ये बेटा 2002 के बाद Bharatpur Sanctuary में this Siberian crane has not been seen. So that means, right? So this branch of the Siberian crane which used to come to India, so that has gone, you can say, extinct, but it is not yet declared extinct, right? Okay, so that is there. So that is why it is still in the critically endangered list, right? So and then beta, towards the south it goes up to Karnataka, and towards the east it goes up to Bihar, right? So the branch of Siberian crane that visited Bharatpur is now extinct, right? The bird was last seen there in 2002, right? One single bird was last seen there in 2002. Right, so for conservation purpose, Siberian crane is covered under the Bonn Convention, right? So Bonn Convention के बारे में अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, right? So Bonn क्या है? Bonn is a place in Germany, right? Bonn is a place in Germany. So वहाँ पर, right, बहुत सारे मुल्कों ने मिलके, right, एक वहाँ एक समझौता किया, right, एक एग्रीमेंट किया, right? जिस एग्रीमेंट का मेन पर्पस क्या था कि जो भी माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, जो बर्ड्स या एनिमल्स एक प्लेस से मूव करके दूसरी प्लेस तक जाते हैं, सो उनको बहुत सारे थ्रेट होते हैं. थ्रेट कहाँ होते हैं? लेट मी टेल यू, राइट, कि एक स्पीशीज है, इट इज माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस प्लेस, राइट, टू, वी कैन से, दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट? इसने यहाँ से माइग्रेट होके इस स्पीसीज ने यहाँ पर आना है, राइट, टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट? सो बेटा इसको टू टाइप्स ऑफ रिस्क, राइट? वन इज द रिस्क ड्यूरिंग द जर्नी, राइट? सो जर्नी के दौरान जैसे मैंने आपको बोला है, राइट, सो पीपल डू द हंटिंग ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स और एनिमल्स, राइट? एंड सेकेंड क्या है? रिस्क एट देयर डेस्टिनेशन. सो जहां पर इन्होंने आना है, राइट, उनको वहां पर रिस्क होता है, राइट? सो बेटा डेस्टिनेशन में जो रिस्क होता है वो क्या होता है? वो टू टाइप्स ऑफ का रिस्क रहता है जो ड्यूरिंग द डेस्टिनेशन वी कैन से, राइट? सो नंबर वन, एक टाइप का जो रिस्क है बेटा, डिग्रेडेशन, राइट, डिग्रेडेशन और लॉस ऑफ द हैबिटेट, राइट? जहां आकर के ये ठहरते हैं, राइट, सो वहां पर अगर मतलब वो जो वेजिटेशन है, राइट, अगर उसका लॉस हो गया, या अगर मान लीजिए उस वेजिटेशन का अगर डिग्रेडेशन हो गया, राइट, सो वहां क्वालिटी इनके जीने के लिए ठीक नहीं रही, तो एक तो रिस्क वो रहता है, राइट, इनको, और दूसरा रिस्क इनको जो रहता है, दैट इज द रिस्क ऑफ द हंटिंग, राइट? सो यहाँ पर भी इनकी हंटिंग, इनकी पोचिंग वो हो सकती है, राइट? हंटिंग, पोचिंग, इनका शिकार हो सकता है यहाँ पर भी, राइट? सो बेटा दैट इज व्हाई these are the two types of the risk at the destination. So Bonn Convention of Germany has, that you can say is particularly for the migratory species, right? The purpose is to ensure the safety,
right, of the migratory species during their journey, means their passages of migration है जो those to make those passages safe and to make their destination places also safe, right, to minimize the risk, right. So beta, as far as this slide is concerned from examination purpose, what is important here for you, right? So one is the western branch covers the longest distance, right? Second important point, Keoladeo National Park, Bharatpur Sanctuary is the most favorable place of the Siberian crane in India, right? And third is it is covered under the Bonn Convention. These are the three important points on this slide for your examination purpose. So please note these points, okay? So ये है, right? And the next thing, beta, which we are going to discuss, okay? बेटा किसी सभी को समझ आ रही है, particularly जो आज नए कैंडिडेट आए हैं, राइट, अनीशा है एंड सेकेंड इज ये जो रेडमी 2, मैं नाम भूल गया, सॉरी, राइट, इन दोनों को है ना, मुझे मैसेज करके बता देना कि आर यू गेटिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, राइट। अनीशा बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, एंड सुखमन आपको समझ आ रही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम या कोई मैं हाँ या कोई ऐसा लग रहा हो कि सारे इज रनिंग वेरी फास्ट, सो मुझे बता देना प्लीज, ओके ओके सर। Yes, so now the next important point which is there, that is the Bonn Convention, right? So Bonn, I told you, that is a place where in Germany, right? So Bonn is a place in Germany, right? So as far as this we can say the Bonn is concerned, right? It is a place in Germany. So what is important here? It is the convention for कंजर्वेशन होता है संभाल, राइट, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, राइट। ये पर्टिकुलरली माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, राइट। सो दिस इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट एम्स टू कंजर्व माइग्रेटरी स्पीसीज एंड रूट, राइट। सो जब वो अपनी जर्नी पे होते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए है ये, राइट, एंड रूट टू माइग्रेशन एंड द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं वहां पहुंचकर उनकी सेफ्टी के लिए ये जो कन्वेंशन साइन की गई है, राइट। सो बॉर्न कन्वेंशन वाज साइंड ऑन द, यू कैन से, ऑस्पाइकस ऑफ द यूएनईपी। यूएनईपी मींस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट। सो ये कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर ही है, राइट, उनकी देखरेख के अंदर है, राइट। So this is the United Nations Environment Program, UNEP means, right? So आप इसको नोट कर लेना, right? जहाँ वैसे तो मैं कम कोशिश करता हूँ एब्रिविएशन यूज करूँ, पर कई बार करनी पड़ती है। So United Nations Environment Program है, right? So this convention became effective from 1983. So ये 1983 से कन्वेंशन स्टार्ट हुई है, right. It covers the conservation of Siberian crane, right. So यहाँ कुछ स्पेलिंग वगैरह में गड़बड़ हुई है, साइबेरियन क्रेन की कंजर्वेशन को ये कवर करती है, अपार्ट फ्रॉम अदर यू कैन से स्पीसीज आल्सो। इंडिया इज ए पार्टी टू द बॉर्न कन्वेंशन, राइट। सो इसमें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट, वन पॉइंट इज दैट Bonn Convention is related with the migratory species. One important point is this, right? So second is it is for the safety of the migratory species en route and when they reach their destination, right? So this is the second point. And third, it is done under the supervision or under the auspices of the UNEP. And these are the 3-4 points which are there, right? And it became effective from 1983. कई बार chronology में पूछ लेते हैं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसा question, right? So it covers Siberian crane also, and India is a party to Bonn Convention. So these are the important points from your examination for your examination purpose, okay? So इन चीजों को नोट कर लेना, right? So अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर किसी का काम रहता हो तो मुझे आप
मैसेज करके बता दिया करो कि सर थोड़ा रुक जाओ अभी आगे बढ़ने से, ठीक है? तो मैं उसको स्लो कर दूंगा। So next is migratory route of the Siberian cranes, right? I have told you there are two routes. In fact, we can say three routes are there, right? So in fact, three routes कौन से हो गए? This is called the route number 1, right? And this is called the route number 2, we can say, right? And this is called the route number 3, right? Otherwise, हम इसको कह देते हैं कि this is the route number 2, right? और इसको हम रूट नंबर 3 ले लेते हैं, जैसे मर्जी कर लो, राइट? क्योंकि हमने तो ये देखना है। ओके, सो बेटा जो भी इसका फर्स्ट रूट है, राइट, रूट नंबर 1 जिसको लिखा है, ये बेटा नॉर्दर्न रीजन में से मूव करती है और ये चाइना में आकर के रुक जाती है, राइट? चाइना में बेटा पोयांग लेक है, राइट? सो वहां तक पहुंचती है ये, और सो इसका जो रूट है वो कंपैरेटिवली छोटा रूट है, राइट? और जो बेटा इसकी जो वेस्टर्न ब्रांच है, राइट, वेस्टर्न ब्रांच की फर्दर 2 ब्रांचेस बन जाती हैं, राइट? एक ब्रांच इसकी इधर आ जाती है, राइट, अक्रॉस द दिस इज नोन एज द दिस इज विच सी, दिस इज द कैस्पियन सी, राइट? सो बेटा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ जो मैंने एरो लगाया है, राइट, ये जो आपका ब्लू वाला पार्ट है, राइट, जहां पर मैंने ये एक एरो लगाया है, डबल पॉइंटेड एरो, राइट? सो बेटा इस पार्ट को हम कौन सा सी कहते हैं? दिस इज ए कैस्पियन सी, राइट? सो प्लीज बियर दिस इन माइंड, राइट, कैस्पियन सी, राइट? सो बेटा एंड ये कैस्पियन सी के बेटा कौन से पॉइंट पर आके रुक जाती है? इस पॉइंट पे आके रुक जाती है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ है बेटा? दिस इज इन द ईरान, राइट? सो कैस्पियन सी बॉर्डर्स ईरान, राइट? सो ईरान के बॉर्डर या ईरान का बॉर्डर है जो वो कैस्पियन सी के साथ लगता है, सो ये भी आपने ध्यान रखना है, राइट? एंड जो बेटा एक इसकी जो वेस्टर्न ब्रांच की फर्दर जो 2 सब ब्रांचेस बनती हैं, राइट? सो वन ऑफ द ब्रांच मूव्स टुवर्ड्स इंडिया, राइट, भरतपुर की तरफ आती है। सो ये इनका रूट है, राइट? सो बेटा एज फार एज द दिस इज कंसर्न, बेटा मैं आपको ये कहता हूँ, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, इन चीजों को नोट कर लेना प्लीज, राइट? ये मत समझना कि ये बुक्स में से कर लेंगे, ये किसी भी बुक में से आपको नहीं मिलेगा, ये जो मैटर है, राइट? सो दैट इज वाई फिर बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी। प्लीज इसको सीरियसली नोट करते जाना, राइट? क्योंकि ये जो है ये किसी क्लास में भी नहीं मिलेगा आपको, और ये किसी बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, ठीक है? सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके? So now one branch Russia to southward with brief migration stopovers, रास्ते में कहीं कहीं रुकती हैं, right? So right, so they rest for a few weeks, right, in wetlands of the northern China. Northern China में कई बार रुकती हैं। ये कोई आपके एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, राइट? बट ये ठहरती कहाँ है आके? पोयांग लेक, राइट? जियांगसी रिवर है चाइना की, राइट? सो उस रीजन में आके ये रुकती है, राइट? एंड द रूट 2, that is the western central Asian population critically endangered one, it is divided into western and the central Asian flocks, right? इसको हम 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं, ये आपका वेस्टर्न पार्ट हो गया, और ये आपका जिसको इन्होंने सेंट्रल पार्ट बोला है, ये वाला हो गया, राइट? सो इट इज डिवाइडेड इनटू दीस टू, राइट? सो वेस्ट एशियन फ्लॉक्स spends winter near the Caspian Sea shores of the Iran. So ये ईरान में आके ठहर जाती हैं, राइट? कैस्पियन सी के किनारे पे आके ये अपनी विंटर वहां पर गुजारती हैं, राइट? अपनी सर्दियां हैं जो। सो दैट इज द पॉइंट देयर, राइट? सो प्लीज नोट दीज पॉइंट्स, ओके? सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट, right? So I am moving on to the next slide now, right? And the next slide is that is the migratory route number 3 of the Siberian cranes, right? So as far as the migratory route number 3 is concerned, जो तीसरा रूट है ये आता है बेटा, right? So ये आपका रशिया, right बेटा, कजाकिस्तान, right, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान
होता हुआ ये इंडिया आता है भारतपुर तक, राइट। सो द सेंट्रल एशियन फ्लॉक मोस्टली नेस्ट्स इन lowlands of the Ob River basin. ये Ob River से चलती हैं, right? It traditionally migrated 5,500 kilometer, migrates 5,500 kilometers south across, you can say, these countries. Which are the countries? Russia, across Kazakhstan, across Uzbekistan, across Turkmenistan, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, राइट। वही कंट्रीज जो हमने बात की है, रशिया से चलती है, फिर पहले ये उज्बेकिस्तान आता है रशिया से चल के, उस कजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान, फिर अल्टीमेटली इंडिया भारतपुर यहाँ पर आ जाती है, राइट। सो दिस इज द रूट ऑफ दिस, राइट, साइबेरियन ट्रेन जो रशिया से चलती है अल्टीमेटली, ओके। So this was about this, you can say, migratory route of the Siberian crane, right? So the next critically endangered bird, right, that is called the spoon-billed sandpiper, right? So spoon-billed because इसकी ये जो beak है, right, it is of this particular shape, that is why इसको हम spoon-billed कहते हैं, right? So one important point is that it breeds in northeast Russia. So it is also the bird of northeast Russia, right? Northern and eastern part of Russia, right? So spends winter in southeast Asia. ये सर्दी में migrate हो जाता है bird. So this is also a migratory bird, right? So बेटा इसके regarding फिर हमें क्या क्या चीजें देखनी है? One is it is the critically endangered species, right? One point is that critically endangered, right? Second चीज क्या है? This is a migratory bird, right? Migratory bird, right? It moves from Russia, right, towards southeast, right? Moves from Russia towards southeast Asia, right? एशिया का जो southeast part है उस तरफ उधर की तरफ ये मूव करता है, राइट, साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज द पॉइंट, राइट। सो बेटा इट ब्रीड्स इन, ये कौन से एरिया में ओरिजिनली रहता है, राइट, क्योंकि वहां से माइग्रेट होकर आता है। इसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है दैट इज वी कैन से द चुक्ची पेनिनसुला एंड द कामचटका पेनिनसुला, राइट। इसके पीछे ये जो एल लगी हुई है ये गलत है, इसको हटा देना है, राइट। सो चुक्ची पेनिनसुला, राइट। सो बेटा इसका जो फिर हैबिटेट है, राइट, इसका जो हैबिटेट है, राइट, जहां पर इसकी ब्रीडिंग ये करता है, राइट, दैट इज द चुक्ची पेनिनसुला, राइट। सो चुक्ची पेनिनसुला एंड द सेकंड इज वी कैन से दैट इज द कामचटका पेनिनसुला, राइट, कामचटका पेनिनसुला, ये दोनों रशिया में है, right, Kamchatka Peninsula. Okay, so first of all, let me tell to the new students that you can say, right, peninsula is a region which is covered by the water from three sides, right. So peninsula हम उस region को बोलते हैं, right. Peninsula is the region, right, is the geographical area or the land, right, region कह सकते हैं और हम land कह सकते हैं इसको, land, right. So covered by water, okay, covered by water from three sides, जिसके तीनों तरफ पानी हो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, राइट। सो प्लीज नोट दिस पॉइंट, राइट, आपको याद रखना है, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। पेनिनसुला इज द लैंड, राइट, कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम यू कैन से थ्री साइड्स, तीनों तरफ जिसके पानी होता है, सो इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, राइट। जैसे हम कहते हैं साउथ इंडियन पेनिनसुला, क्यों बोलते हैं? इस तरफ भी पानी है, समुद्र है, इस तरफ भी समुद्र है, इस तरफ भी समुद्र है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द पेनिनसुला, राइट। सो इसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है दैट इज द चुक्ची पेनिनसुला एंड द कामचटका पेनिनसुला, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट माइग्रेट्स, राइट, वाया जापान, कोरिया, चाइना, जापान,
कोरिया, चाइना से होती हुई ये इन कंट्रीज में आती है। इंडिया में मेनली हमारे लिए तो इंडिया इम्पोर्टेंट है, राइट। बाकी चीजों के ऊपर आपको फोकस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपीन एंड माले पेनिनसुला। माले पेनिनसुला जहां पर मलेशिया है, और राइट, सो उसको हम माले पेनिनसुला बोलते हैं, राइट। सो दैट इज देयर। सो बेटा इस स्लाइड पे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन इज स्पून बिल्ड सैंडपाइपर इज ए माइग्रेटरी बर्ड दैट कम्स फ्रॉम रशिया. It is critically endangered species, right? So it reaches India right during the winter season. So these are the three important takeaways from this point, right? And the next, I have told you that what do we mean by the term peninsula, right? So that also we have discussed, right? And now beta, इसमें हमने दो important peninsulas की बात की है. One is the Chukchi Peninsula and second is the Kamchatka Peninsula. Let me tell you about the Chukchi Peninsula and the Kamchatka Peninsula, right? इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट्स निकलते हैं, राइट। सो ये बेटा हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, राइट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर इसको हम ले लेते हैं कि ये हमारा बनता है आर्कटिक ओशन है ये, राइट। ऊपर बिल्कुल पोल की तरफ है, राइट। एंड यहाँ पर साइबेरियन सी आता है, ईस्ट साइबेरियन सी कहते हैं, राइट। एंड यहाँ पर बेटा आपका है बेफोर्ड सी, राइट, बेफोर्ड सी, राइट। एंड ये है बेरिंग स्ट्रेट, राइट, बेरिंग स्ट्रेट, राइट। सो बेरिंग स्ट्रेट, राइट। सो बेटा स्ट्रेट क्या होती है, पहले नए स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं, राइट। सो स्ट्रेट is a narrow passage of water, right? Narrow passage of water between the two land masses, right? Between the two land masses, right? दो land masses के बीच में, right? जो एक नैरो सा जो वाटर का पैसेज होता है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। सो ये बेरिंग स्ट्रेट इसका नाम है, राइट, ओके। एंड बेटा यहाँ पर आपको बेटा एक पेनिनसुला नजर आ रहा है, जो बेटा ये वाला पेनिनसुला है, ये वाला एंटायर पेनिनसुला है, जो इस पेनिनसुला को हम चुक्ची पेनिनसुला कहते हैं। और इसीलिए राइट इसके पास का ये जो समुंदर है इसको हम चुक्ची सी बोलते हैं, राइट। सो दिस इज द यू कैन से चुक्ची पेनिनसुला, राइट। एंड बेटा वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट, राइट। सो बेटा किसी वक्त पास्ट में, राइट, ये यहाँ पर बेटा वी कैन से राइट एक कनेक्शन था, ये दोनों पार्ट थे जो धरती के, ये आपस में कनेक्टेड थे, राइट। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके बीच में राइट एक दरार आई और पानी भर गया और ये दोनों पार्ट सेपरेट हो गए, राइट। सो बेटा ये वाली टेरिटरी अमेरिका की है और ये वाली टेरिटरी रशिया की है, राइट। अमेरिका का जो अलास्का पार्ट है ये उसका पार्ट है, राइट। ये दिस इज अमेरिकन टेरिटरी एंड दिस इज द रशियन टेरिटरी, राइट। अमेरिका दूसरी तरफ चला जाता है एंड रशिया दूसरी तरफ है, लेकिन धरती क्योंकि राउंड है ना, सो दैट इज वाई ये मतलब दिस वाज ए सिंगल मास ऑफ लैंड, बट over the period of time, right? So you can say water filled in between and a narrow passage of water, right, developed there, which is known as the Bering Strait, right? So this is the important point here, right? And beta one more interesting point is that this territory, this entire Alaskan territory है जो this entire territory, right? This was a Russian territory, right? So this territory was given by Russia to America. ये territory रशिया ने अमेरिका को बेच दी थी, right? So ये Russian territory होती थी पहले, okay? So please note this down. And ये जो एक point इसमें जो बहुत important point है, ये जो मैंने राउंड बनाया है,
This is known as the what is this is the Chukchi Peninsula, right? और इसमें एक बहुत important point है जो examination के लिए that you can say, right? So Chukchi Peninsula is the right easternmost peninsula of Asia, right? Easternmost peninsula of Asia. So बहुत important fact है ये, बहुत important point है एग्जामिनेशन में पूछने के लिए, राइट? सो प्लीज इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये. सो दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पेनिनसुला ऑफ एशिया, राइट? एशिया का ये ईस्ट की तरफ, राइट, लास्ट पेनिनसुला है, राइट? चुक्ची पेनिनसुला है जो. सो आई थिंक आपको ये चीजें याद है, राइट? सो चुक्ची सी is north of the Bering Strait, right? Bering Strait divides the right Asia and the North America continent, right? So ये भी आप एक point note कर लो, right? So the Bering Strait divides the continents of Asia and North America, right? So Bering Strait, okay? Bering Strait divides continents of Asia and North America, right? North America is one of the continents, right? एक महाद्वीप है, right? And North America, ये Bering Strait उनको डिवाइड करती है. ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस स्लाइड के ऊपर जो आपको बताने थे, right? And then next slide, let me move on to the next slide, right? So the next slide which we will discuss here, right, that is the Kamchatka Peninsula, right? So beta Kamchatka Peninsula, right, is where it is also in the eastern part of Russia, right? So you are seeing that you can say this is the Kamchatka Peninsula, right, which is here, right? So Kamchatka Peninsula, right? So this entire piece of land, right, ऊपरला पार्ट है जो वो रशिया की लैंड के साथ जुड़ा हुआ है. इस तरफ बेरिंग सी है, राइट, पैसिफिक ओशन कह लेते हैं. इस तरफ पूरा पैसिफिक ओशन है और इस तरफ जो है सी ऑफ ओखोत्सव, राइट? सो एक तरफ इसके यू कैन से ये जो पेनिनसुला बनता है, राइट? सो ये जो पेनिनसुला आपका बन रहा है, राइट? सो बेटा इस पेनिनसुला के वी कैन से दैट, राइट, एक तरफ है जो इसकी जो लैंड है, राइट, ये पेनिनसुला है, इसके इस तरफ है पैसिफिक ओशन, राइट, पैसिफिक ओशन है, और इसके इस तरफ है बेटा क्या, दैट इज नोन एज द सी ऑफ ओखोत्स्क, KHOTSK, right? Sea of Okhotsk, that is here, right, on this side of the peninsula, right? So I hope you are understanding everything. So this is Kamchatka Peninsula. I told you, right, that the Kamchatka Peninsula is bordered by the Pacific Ocean on the eastern side, right, and it is bordered by the Sea of the, we can say, Okhotsk on the western side, right? So ये western and eastern side का भी ध्यान रखना है आपको, right? So that is there, right? So as far as the Kamchatka Peninsula is concerned, there are a number of interesting points about the Kamchatka Peninsula, right? So right, Kamchatka Peninsula. So one important point about the Kamchatka Peninsula is that it is known as a valley of geysers, right? Hot water geysers are found there in large numbers, right? So one point is that, right? And second is there are many active volcanoes, right? Active ज्वालामुखी हैं यहाँ पर, active volcanoes are there, right? And we can say that there is very high density of
active volcanoes. Very high density of active volcanoes which is found there. This is the second important point, right? So please note these, right? So next is right. Next is we can say, right. The next point is, right. You can say Flyushevskaya, right? Flyushevskaya, right? Spoka. Flyushevskaya Spoka is the largest, right, volcano in the northern hemisphere, right? So means इक्वेटर भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ का जो जितना भी जमीन का हिस्सा है, राइट, सो धरती का, सो उतने हिस्से में ये सबसे बड़ा वोल्केनो है in the northern hemisphere, right? So please note these points, right? That is important here, right? So the largest active volcano, इसके साथ आप एक लफ्ज एक्टिव भी लिख लो, right? Largest active volcano, जो कि आज भी you can say active है, right? Largest active volcano in the northern hemisphere, right? And the next point is beta, there are on this peninsula there are 6, right? We can say UNESCO World Heritage Sites, right? UNESCO World Heritage Sites are there, right? Due to the volcanoes, right? So UNESCO World Heritage Sites are found there, right? So बेटा यहाँ पर बेटा आप दो इम्पोर्टेंट चीजें देखो, राइट? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि दिस रीजन इज वेरी नियर टू द नॉर्थ पोल. सो जब ये रीजन नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल के बहुत नजदीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर स्नो होगी, राइट, राइट, आइस होगी, राइट. और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर बेटा एक्टिव वोल्केनोस बहुत हैं. अगर यहाँ एक्टिव वोल्केनोस होंगे इतने, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर बेटा फायर भी होगी, राइट, फायर भी होगी, बिकॉज वोल्केनोस जब फटते हैं तो फायर ही निकलती है, राइट. सो बेटा दैट इज वाई, राइट, दैट इज वाई Kamchatka Peninsula is known as the land of, we can say, ice and fire, right? So this is known as land of ice and fire, right? Please note this point, land of ice and fire, right? Ice and fire, right? इसका जो northern part है, right, that remained permafrost. Permafrost means कि throughout the year वहां पर बर्फ जमी रहती है, और जो सदर्न पार्ट है वो परमाफ्रॉस्ट नहीं है, राइट. सो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज known as land of ice and fire, right. And beta one more important point which is here, right, that is we can say because जो भी during the winter, right, western winds, right, move from this land towards this region, right, and when they move from this land towards this region, so then what happens, beta, they carry the moisture from here, right, and the rainfall occurs, or the rainfall happens, right, on the Kamchatka Peninsula, right. That is why on Kamchatka Peninsula the winters remain mild, right, winters remain mild because बरसात हो जाती है, सो बहुत ज्यादा वो ड्राई किस्म की विंटर जो है वो नहीं होती, winters remain mild here, right, beta. And beta, this is the reason that on the Kamchatka Peninsula, right, there is a rich variety of, right, rich variety of plants is found, right, rich variety of plants is found there, okay, plants is found there, right. So this is a biodiversity rich region also, right. So that is the important point, right, right. And the next important point which is here, that is beta ke this region, this part is, we can say, geologically unstable part, right.
geologically, right? Geologically, this is an unstable part, right? So geologically unstable है. Geology means भूमि का विज्ञान, right? So अगर हम मतलब भूविज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अस्थिर पार्ट है. अस्थिर पार्ट क्यों है बेटा? द रीजन इज दैट, राइट? सो here lies we can say Kamchatka, right? Kuril, right? Kamchatka Kuril trench होता है. What is that? That is a very you can say deep valley on the floor of the ocean, right? Deep valley on the floor of the ocean, right? So that is the point here. Deep valley on the floor of ocean, right? So इसके पास है जो, that is the Kuril Kamchatka trench, right? So बेटा Kuril Kamchatka trench है अगर, right? What is your query? एक सेकेंड निशांक, ओके, वेयर वन प्लेट सब्जेक्ट अंडर द अदर, यस वहां पर होता है. ओके, यू आर ट्रू. सो नाउ बेटा, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज हियर, राइट? दैट पॉइंट इज दैट यू कैन से deep valley on the floor of the ocean, right? So that is filled with water. बेटा यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं आपको ये बताऊं बेटा, तो ये मैं एक पीस लेता हूं अर्थ का, राइट? इस तरीके से मैं एक पीस अर्थ का ले लेता हूं, राइट? कोन की शेप में, राइट? एंड इसमें क्या है बेटा, कहीं पर तो ये प्लेन आएगा, राइट? कहीं पर बेटा ये यहाँ पर ये माउंटेन होंगे, और कहीं पर बेटा ये डीप सी होगा, राइट? कहीं पर ये डीप सी होगा. सो ये हमारा सरफेस है अर्थ का, राइट? कहीं पर ऐसा प्लेन रीजन है, कहीं पर बहुत ऊपर उभरा हुआ है जैसे हिमालयस है, और कहीं पर ये डीप है, राइट? इनसाइड, राइट? एंड बेटा आपको मालूम है कि बेटा जो हमारा धरती का जो बेटा ऊपरला पार्ट है, राइट? सो दैट यू कैन से अपर पार्ट, राइट, इज नोन एज द क्रस्ट, राइट? इस अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, राइट? मैं आपको रफली करा रहा हूँ, डिटेल में आपको वहां करवाऊंगा जब हम ज्योग्राफी की हम क्लास लेंगे, राइट? और बेटा ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस पार्ट इज नोन एज मेंटल, राइट? जो बीच वाला पार्ट है, राइट? एंड बेटा ये जो बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट है, राइट, दिस पार्ट इज नोन एज कोर, राइट? सो अर्थ के ऊपर से अगर हम अर्थ की सेंटर की तरफ जाते हैं, so these are the three parts, right? Three layers we can say. The upper part is crust, then mantle, then core, right? So बेटा यहाँ क्या है, आपको क्या मिलेगा बेटा? At the boundary of this, right? At the boundary of this we can say the crust and mantle, right? So there is a semi-solid layer, right? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेटा एक सेमी सॉलिड लेयर मिलती है, यू कैन से, राइट? और ये जो सेमी सॉलिड लेयर जो एक यहाँ पर मिलती है, राइट? सो इट इज लाइक प्लास्टिक, राइट? सेमी सॉलिड है, और सेमी लिक्विड भी हम इसको बोल सकते हैं. यहाँ पर एक सेमी सॉलिड लेयर मिलती है, राइट? एंड बेटा जो क्रस्ट है अर्थ का, राइट? सो बेटा वो क्या है, राइट? सो बेटा इसके नीचे क्या है, एक और चीज आपको बताता हूं कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर, राइट, डीप जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट? टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट? टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके? टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो वैसे वैसे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट? और बेटा अगर बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब तो क्या होगा बेटा? अर्थ के बेटा जो नीचे वाला पार्ट है, राइट? सो बेटा इस सब पार्ट के अंदर, राइट, क्या है बेटा? जो रॉक्स हैं बेटा, रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं, राइट? सो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिलता है? मॉल्टन रॉक्स मिलती हैं, राइट? मॉल्टन रॉक्स,
राइट, जो रॉक्स हैं वो पिघल जाती हैं बिकॉज ऑफ द मोर हीट, राइट। और बेटा जब रॉक पिघल जाएगी तो क्या होगा बेटा, अंदर से प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। So pressure from inside will increase. What will happen? Pressure from inside will increase. Okay. So pressure from inside will increase. Okay. अंदर से प्रेशर बढ़ेगा, राइट। सो बेटा अगर अंदर से प्रेशर बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन बेटा, राइट। सो जो मॉल्टन मटेरियल है, राइट, दैट इज कॉल्ड मैग्मा, राइट। सो लेट मी टेल यू दैट मॉल्टन material, right, inside the earth is called magma, right। वो मैग्मा होता है, राइट, उसको मैग्मा कहते हैं। तो ये जो मैग्मा है ये मॉल्टन मटेरियल है, राइट। अंदर से प्रेशर बढ़ता है, सो बेटा इट विल ट्राई टू राइज अपवर्ड, राइट। सो फिर बेटा ये क्या होगा, इट विल ट्राई टू राइज अपवर्ड। सो ये ऊपर की तरफ पूछने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। और बेटा जब ऊपर की तरफ जाएगा तो बेटा यहाँ पर जहां पर बेटा ये डेप्थ बनी हुई है, एक बेटा ट्रेंच बना हुआ है, राइट। सो बेटा यहाँ पर जो क्रस्ट की जो लेयर है दैट इज वेरी नैरो लेयर, है ना। सो अगर यहाँ क्रस्ट की लेयर नैरो है तो बेटा व्हाट विल हैपन, दैट मैग्मा will you can say break through this narrow layer of the earth, right? So what will happen? So magma will, right, will break through, right, the thin crust, right, the thin crust and come out as lava, right, and come out as lava. So यहाँ से एक लावा की फॉर्म में आ जाएगा, right, and beta this is the reason, right, जो अर्थ की लेयर में स्टोन मेल्ट है, अच्छा स्टोन मिलते हैं, वो क्या प्रोसेस होता है, इज इट सिमिलर टू दिस? नहीं बेटा, दैट इज ए सेपरेट थिंग, राइट बेटा, वी विल डिस्कस दोस आल्सो, राइट। वो बेटा जब हम रॉक फॉर्मेशंस का हम करेंगे ना तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। सो अभी हम इसको यहीं तक सीमित रखते हैं, अदरवाइज हमारा लेक्चर डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है, और आपको गेन नहीं होगा। सो मॉल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ, राइट। सो वो ये होता है, राइट, और वो फिर बाहर आ जाता है, राइट। सो दैट इज एज लाव, राइट। सो बेटा दिस इज द रीजन, राइट, दिस इज द रीजन कि जहां पर इस रीजन में आपको ये पूरे का पूरे आइलैंड्स मिलते हैं, राइट। आइलैंड क्यों है? समुद्र के बीच यहाँ पर बेटा एक ट्रेंच बन रही है, राइट, एक डीप यू कैन से वैली है, और वहां पर जो क्रस्ट है वो कमजोर है, राइट, और बेटा वहां से लावा निकलता रहता है, राइट। सो लावा निकलता रहता है, सो यहाँ बेटा कुछ कुछ पार्ट्स में जो लावा है, राइट, वो बेटा डिपॉजिट होता गया और वो समुद्र में से बाहर आ गया, राइट। सो वो ऊपर हमें दिखने लगा, सो इसको हम आइलैंड कहते हैं। सो प्लीज bear this in mind that Kuril Islands are the volcanic islands, right? So please note this point that Kuril Islands are the volcanic islands, right? So beta that is why क्या होगा? So मैंने यहाँ सो बेटा हमारा जो पॉइंट है यहाँ इंपॉर्टेंट वो ये है कि मैंने आपको बोला कि दिस इज द अनस्टेबल पार्ट। अनस्टेबल पार्ट क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पर बेटा स्ट्रेंच होने की वजह से, राइट। सो यहाँ पर बेटा क्या है, सो यू कैन से लावा, राइट, comes out by breaking the, right, by breaking the crust, right, by breaking the crust, right, with great force, right, with great pressure or force we can say, right, pressure or force, right, and that leads to the, right, leads to or that create, we can say, right, that creates vibrations, right, that creates vibrations, and due to that vibration क्या होता है, यहाँ पर earthquakes आते हैं, right। सो इस रीजन में
अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं कामचटका पेनिनसुला में, राइट, अर्थक्वेक्स। एंड इसके आसपास क्योंकि समुद्र है, जब बेटा समुद्र में अर्थक्वेक आएगा तो पानी का लेवल ऊपर उठेगा, राइट, और समुद्र में अर्थक्वेक आने की वजह से एक और चीज होगी बेटा, यहाँ पर सुनामीज आती है, राइट। सो दिस रीजन, इस रीजन में सुनामीज एंड बेटा अर्थक्वेक्स ये आते हैं, राइट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट के अराउंड द कामचटका पेनिनसुला, राइट, देयर इज द world's greatest diversity of the salmon fish, right? So world's greatest diversity of salmon fish is found here, right? World's greatest diversity of salmon fish, right, is found here. Sorry, salmon fish is found here. Okay, is here. So that is the important point again, right? So that's there, right? So यहाँ पर इतनी diversity है, right? So world's great diversity of the salmon fish, right? And apart from that, due to the, you can say, pollution or the increase in the nutrients in the water bodies, right? So what is there, बेटा? कामचटका पेनिनसुला के आसपास के रीजन में क्या है बेटा? एल्गल ब्लूम्स देखे जाते हैं, राइट, एल्गल ब्लूम्स, राइट। आप देखते हो ना वाटर बॉडीज में, जैसे कोई पॉन्ड हो या और हो, राइट, सो वहां बेटा मतलब एक ग्रीन वेजिटेशन, राइट, वाटर बॉडीज के अंदर, मतलब वाटर की सरफेस के ऊपर आप देखते हो, राइट, पैदा हुई, तो उसको हम बेटा एल्गी बोलते हैं, वो एक्चुअली एल्गी होती है। एल्गल ब्लूम्स मीन्स टू मच, right, means too much, you can say production of the, we can say, okay, algae, or too much existence of the algae in that region। वो क्यों होता है? ड्यू टू वेरियस रीजन्स, राइट, राइट बेटा, जब वाटर बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, राइट, तो इस प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। सो दैट इज व्हाई एल्गल ब्लूम्स आर सीन देयर अराउंड दिस रीजन, ओके। एंड मोर ओवर बेटा, on this region is found the कामचटका ब्राउन बियर, राइट। सो अगर हम एनिमल्स की बात करें, सो यहाँ पर कामचटका ब्राउन बियर, राइट, मिलता है कामचटका, यू कैन सी ब्राउन बियर इज फाउंड हियर, ओके। सो ये इस पेज पे इंपॉर्टेंट बातें थी। सभी के सभी पॉइंट्स जो इस पेज पे मैंने बताए हैं, मैं 1 मिनट रोकता हूं, आप इन चीजों को नोट कर लो। ये सभी के सभी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। सो प्लीज नोट दीज पॉइंट्स। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो मेरे से, नो वरीज। So I think you have noted down all these points. Okay, so I am moving further. Okay. So let me move ahead, right? So this is the point basically, right? ये मैंने आपको पूरा मैप लेकर के वर्ल्ड का, मैंने मीन्स नॉर्दर्न पार्ट का, उसके ऊपर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की ताकि आप वहां पर भी आइडेंटिफाई कर सको कि कहाँ है जो दिस इज द चुक्ची पेनिनसुला रीजन, ये आपका चुक्ची पेनिनसुला का रीजन है, राइट, एंड दिस इज द कामचटका पेनिनसुला, राइट। और जो कुरील आइलैंड्स हैं वो कामचटका पेनिनसुला को जापान के साथ जोड़ते हैं, राइट। सो ये मैंने आपको इस मैप पे दिखाने के लिए यहाँ ये इमेज लगाई थी, ठीक है। सो आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर पाओगे मैप के ऊपर, ओके। सो दैट इज one point, right, which is important point here, okay। So now the next important point which is there, slide, sorry,
So this is a sociable lapwing. This is the image of the sociable lapwing, and sociable lapwing is also a bird species, right? So first of all, this is a bird. This is critically endangered, 1 point, right? And second point, this is a bird. And third important point, this is migratory bird, right? So ये तीन important point इसमें इस लाइन में है. Critically endangered है, bird है, migratory है, right? So lives in Eurasian steppes. Steppes grasslands को कहते हैं, right? तो steppes बेटा जैसे अगर हम बात करें, right? मैं तीन चीजें यहाँ लिखूंगा, right? एक बेटा होता है डेजर्ट रीजन, राइट? और एक डेजर्ट रीजन होता है, और दूसरा बेटा नीचे होता है, दैट इज नोन एज द, वी कैन से द, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो, दैट इज द इक्वेटोरियल, राइट? इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, राइट? इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल, राइट? इक्वेटर भूमध्य रेखा, ट्रॉपिकल मीन्स जो हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा है, उनको हम ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, राइट? सो ये हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, राइट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, राइट? सो बेटा यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमारा ये वाला रीजन है, राइट? इस रीजन में क्या रहेगा बेटा, वेरी डेंस वेजिटेशन, राइट? क्योंकि जंगल है, बरसात बहुत होती है, यहाँ पर वेरी डेंस वेजिटेशन रहेगी, राइट? डेंस वेजिटेशन एंड लॉन्ग hardwood trees would be found there, right? Long hardwood trees would be found there, right? In those areas, okay? So that is there, right? And ये जो डेजर्ट है, यहाँ पर लैक ऑफ वाटर रहता है, so that is why यहाँ पर almost, right, absence of the vegetation, right? यहाँ पर वेजिटेशन बहुत रेयर होती है, वेरी रेयर वेजिटेशन, राइट? सो बेटा इन दोनों के बीच में, राइट, एक एरिया आ जाता है जिसको हम ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं, राइट? सो वो जो बीच में जो एरिया है इन दोनों के बीच में, राइट, जो एक ट्रांजिशनल एरिया है, जो ट्रांजिशन है, दैट इज नोन एज द ग्रासलैंड बेसिकली, राइट? सो यहाँ पर ग्रास मिलता है, राइट? ट्रीज के लिए जो एनवायरनमेंट है वो इतना अनुकूल नहीं होता कि वहां पर लार्ज ट्रीज डेवलप हो जाएं, राइट? एंड एज फार एज द डेजर्ट से बेटर कंडीशंस होती हैं, क्योंकि वहां पर आपको वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, दैट इज वाई वेजिटेशन, यस बेटा, दैट इज वाई वेजिटेशन आपको मिलेगी, राइट? लेकिन वैसी वेजिटेशन नहीं मिलेगी जैसी रेन फॉरेस्ट में है या जैसी डेजर्ट में है. सो ये ग्रासलैंड इज ए ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द फॉरेस्ट एंड बिटवीन द this desert region. Okay, so please note it, right? So beta this particular bird species, right, ये यूरेशियन स्टेपीज में आपको वो भी दिखाऊंगा में आता है. द एरिया स्प्रेडिंग फ्रॉम ईस्टर्न यूक्रेन से लेकर के, राइट, अल्टाई माउंटेन्स तक का एरिया है, राइट? अल्टाई माउंटेन्स इंडिया के नॉर्थ में रह जाते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, राइट? सो वी कैन से दैट अगर हम ऐसे ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट की बात करते हैं, राइट? सो वेस्ट की तरफ ये यूक्रेन से स्टार्ट होता है, जो ये रीजन है, राइट? ओके, सो इधर ईस्ट की तरफ ये कहाँ तक आ जाता है बेटा, अल्टाई माउंटेन्स तक ये रीजन आ जाता है. ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रीड ऑन द ओपन ग्रासलैंड्स. इनकी ब्रीडिंग कहाँ होती है, रशिया में एंड यू कैन से कजाकिस्तान में, राइट? रशिया में एंड कजाकिस्तान में. ओके, they migrate in winter to various countries of Central Asia and Middle East along with Pakistan, Northwest India and Sri Lanka. So ये सर्दियों में माइग्रेट होके इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान में आ जाता है, राइट?
इनकी पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्यों है? जो स्टेपीज लैंड हैं, जो ग्रास लैंड्स हैं, राइट, पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ने की वजह से दोस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चरल फार्म्स, राइट। सो जब इनका हैबिटेट खत्म हो गया, राइट, सो देन क्या होगा, you can say then there will be the problem obviously to their population, right, इनकी population को problem आएगी। बेटा आपने क्या पूछा है अमृत, मैं थोड़ा यहाँ से ऑन करता हूँ, आप थोड़ा बोल के पूछ लो, क्योंकि वो जो मैंने लिखा हुआ है ना उसके बीच आ जाता है आपका समटाइम्स, तो वो फिर मुझे पता नहीं चलता, राइट। सो आप बोल के पूछ लो जो पूछना है। So which countries fall in Middle East? बेटा मिडल ईस्ट के अंदर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली, right? Middle East is a term which is not properly defined term, right, we can say, right, but यहाँ जो हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, right, इसके अंदर बेटा अरेबियन पेनिनसुला आ जाता है, अफगानिस्तान तक का जो रीजन है, समटाइम्स इसमें पाकिस्तान को भी लेते हैं लेकिन पाकिस्तान को हम छोड़ते हैं, राइट। अफगानिस्तान तक का जो पार्ट है, राइट, तुर्की से लेकर के जो अफगानिस्तान तक का पार्ट है, इसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं मेनली, राइट, ये होता है, राइट। और बेटा उधर क्या होता है, ऊपर सीरिया से लेकर के नीचे आपका यमन तक का जो पार्ट है, यमन तक का, दैट इज नोन एज द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, राइट। सो ये होता है, राइट। अदरवाइज दिस इज नॉट ए डिफाइंड टर्म, राइट, ऑफिशियल टर्म नहीं है ये, सो दैट इज वाई इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी आपको। इज इट क्लियर? Hello, Amrit, clear? Sir, actually I was disconnected. Okay. So beta, I am telling you that Middle East is not an official term, right? So that is why you will find a number of, you can say, opinions about the Middle East, right? So someone would say that Middle East is restricted up to Iran only, right? So some people include in that Afghanistan also, right? So broadly, we can say the area from, you can say, Turkey in the west up to Afghanistan in the, we can say, eastern side. One is that, right? And second, अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें तो हम फिर सीरिया से लेकर के नीचे यमन तक का जो एरिया है, राइट, उसको हम मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, राइट। सो दैट इज देयर। क्लियर है? आप सुन गया? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो बेटा इसका एक तो कारण है कि जो ग्रासलैंड्स है दोस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, राइट, एंड सेकंड इलीगल हंटिंग along the migratory route, right, and in the winter grounds, जहां पर ये बर्ड आता है वहां पर इलीगल हंटिंग होती है। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, माइग्रेटरी है, बर्ड स्पीसीज है, राइट, यूरेशियन स्टेपीज में पाया जाता है, राइट, एंड ये इसकी जो ब्रीडिंग प्लेस है रशिया एंड कजाकिस्तान है, एंड ये विंटर में माइग्रेट होकर के पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में आता है, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, सो let me move on to the next slide. So now the next slide. So these are the grasslands, right? I was telling you that I will show you the grasslands now. So these are the grasslands, right? So please note these, right? So एक तो ये वाला ग्रासलैंड रीजन है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड रीजन है या ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेरीज, राइट। ये मैचिंग में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, राइट। सो प्रेरीज आर द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, प्लीज नोट इट, राइट। एंड ये बेटा आपका साउथ अमेरिका की ग्रासलैंड्स हैं, राइट। जो साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड्स हैं दोज आर नोन एज पैम्पास,
right? Pampas are the grasslands of South America, right? And ये बेटा यूरेशियन, यूरोप प्लस एशिया की जो ग्रासलैंड्स हैं ये वाली, राइट? सो इनको हम बोलते हैं स्टेपीज, राइट? दीज आर नोन एज स्टेपीज, राइट? ओके, एंड ये बेटा अफ्रीका में है जो ग्रासलैंड है, साउथ अफ्रीका में पर्टिकुलरली है ये, राइट? इसको हम बोलते हैं फेल्ट, VELDT, वी की प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं एफ से, राइट? जैसे हम मतलब फॉक्स वैगन बोलते हैं कार को, है ना, वॉक्स वैगन नहीं बोलते, राइट? सो फेल्ट, राइट? सो ये यहाँ की है। एंड ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रासलैंड्स हैं उसको बुश कहते हैं, एंड जो न्यूजीलैंड की जो ग्रासलैंड्स हैं इनको हम कैंटरबरी प्लेन्स कहते हैं, राइट? सो ये नोट करने वाले पॉइंट्स हैं सभी, राइट? सो द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज, grasslands of South America are known as pampas, right? Grasslands of Eurasia are known as steppes, and grasslands of Africa, particularly South Africa, those are known as veld, VELDT, right? Veld. And the grasslands of Australia are known as bushes, right? And the grasslands of New Zealand are known as the Canterbury Plains, right? So this is the important thing. ये सभी पॉइंट्स प्रिलिमिनरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज मिस मत करना, राइट? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। सो आई होप यू मस्ट हैव नोटेड दीज पॉइंट्स, ओके? सो ये हो गया हमारा, राइट? सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, राइट? आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. The next slide is Altai Mountains. I want to show you the Altai Mountains also, right? So please, right, note the beauty of the Altai Mountains, right? So this is the scene there, Altai Mountains, right? And where are the Altai Mountains? Here are found the Altai Mountains, right? So फिर Altai Mountains कहाँ आ गए बेटा? See, connecting point है 4 कंट्रीज का. One is Mongolia, right? One is Mongolia, Russia, right? Mongolia, China, and Kazakhstan, right? These are on the connecting point on the border of Russia, Mongolia, China, and Kazakhstan. So very important fact for your preliminary examination. And they right, and their range is from right, they run, you can say, from the this to this direction, right, which is from northwest to southeast direction or north south direction भी कह सकते हैं, right? So एग्जामिनेशन में आपको क्या पूछा जा सकता है, right? मैं यहाँ आपको बताता हूँ, right, के अल्टाई माउंटेन्स, right? Altai Mountains, right? Number 1 are lie on the border of lie towards the north of India, right? One point is that. दूसरा है Altai Mountains run in north-south direction. So आपको ये 2 स्टेटमेंट्स दे दी, नीचे दे दिया कोड्स कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट में 1 ओनली, राइट? सेकेंड 2 ओनली. ऐसे आपको क्वेश्चन देते हैं. सी बोथ 1 and 2, राइट? एंड डी में हम कह सकते हैं कि नीदर 1 nor 2, दोनों में से कोई भी नहीं है. सो आपका आंसर क्या होगा वहां एग्जामिनेशन में? टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ इंडिया. मैं यहाँ नॉर्थ कर दूं, नॉर्थ ऑफ इंडिया,
आपका आंसर क्या होगा बेटा कॉम्बिनेशन में? शाबाश, मेरे पास अभी एक रिस्पॉन्स आया है। सो सभी अपना अपना रिस्पॉन्स दो प्लीज, आंसर विल बी सी। ओके, बाकी लोग? शाबाश, ट्राई टू आंसर। यहाँ कौन सा मैंने आपसे फाइन लेना है ना? अगर गलत भी हो जाएगा तो, बट ट्राई टू आंसर प्लीज। ओके, कोई नहीं करेगा आंसर, चलो कोई बात नहीं। ओके, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग आंसर करोगे, चलो कोई बात नहीं। सो दिस इज द पॉइंट हियर, राइट? सो बेटा इन चीजों को नोट करना है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस के एल्टाई माउंटेन्स कहाँ मिलते हैं हमें। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? So this is there. Okay. So the next slide I am moving. That is a Jardin's courser. Jardin's courser is also a bird, right? बेटा कि ये देख के डर मत जाना कि इतने नाम याद रखने होंगे, कोई ब्रेन के ऊपर प्रेशर मत रखना, राइट? सिर्फ आप एक बार गो थ्रू होना है। जब आप एग्जामिनेशन में ये लिखा देखोगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो अपने आप आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये हमने वहां पढ़ा था, राइट? और ये ऐसा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पिक्चर्स लगाई हैं साथ में, इनकी इमेजेस, राइट? सो दैट आपके माइंड में इनकी इमेज क्रिएट हो सके कि ये कैसा बर्ड होता है, राइट? सो दैट्स द रीजन। ओके, सो नाउ Jardin's courser. First of all, this is a bird, right? This is critically endangered. यहाँ मैं लिख देता हूँ, this is CR. CR means critically endangered bird है ये। Okay, so ये तो चलो। Second, this is endemic to India. Endemic to India means it is found in this region only. It is not found out of India, right? It belongs to India only. So that is why this is known as endemic to India, right? Found in ईस्टर्न घाट्स में मिलता है, कहाँ? आंध्र प्रदेश में, राइट? सो हम ये गलती हम जरूर करेंगे अगर वहां पूछा जाता है कि Jardin's courser, right, which is a critically endangered species, right, is found in first choice Western Ghats of India, second choice Eastern Ghats of India, third choice in Northeast Mountains, and fourth choice Northern Himalayas. So ये कहाँ पर मिलता है? So बहुत सारे स्टूडेंट या तो मतलब ईस्टर्न घाट्स को छोड़ेंगे, बाकी तीनों में से एक आंसर लगाएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर नहीं पढ़ा हुआ तो, राइट? सो दैट्स व्हाई प्लीज मतलब ऐसे हमने ऑब्जर्व करना होता है चीजों को, राइट? सो ये ईस्टर्न घाट्स में मिलता है, राइट? एंड करंटली नोन ओनली फ्रॉम द राइट श्री लंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट? क्रिटिकली एंडेंजर्ड ड्यू टू द हैबिटेट लॉस, राइट? क्योंकि इसका जो हैबिटेट है वो खत्म हो गया। प्रेफर स्क्रब हैबिटेट, ये झाड़ियां पसंद करता है और वो आजकल खत्म होती जा रही हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट? सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन? वन इज critically endangered, second is bird, third is nocturnal. Nocturnal means a bird which remains active during the night. वो बर्ड या वो ऑर्गेनिज्म जो रात को एक्टिव रहता है और दिन में सुस्त हो जाता है, उसको हम नॉक्टर्नल कहते हैं, और जो दिन में एक्टिव रहता है उसको हम ड्यूरेनल कहते हैं, राइट? मैंने आपको कल भी बताया था कि हम दो किस्म इसकी बना लेते हैं। वन इज द ड्यूरेनल, DIURNAL, right? Diurnal means those, right, remain active during the day, right? Remain active during the day. So this is diurnal, right? And second होता है nocturnal, right? Nocturnal means those that remain active, right, during night. जो रात को एक्टिव रहते हैं उनको हम नॉक्टर्नल कहते हैं। सो ये एक नॉक्टर्नल बर्ड स्पीशीज है, एंडेमिक टू इंडिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईस्टर्न घाट्स में मिलता है, राइट? एंड एक ये जो राइट लंका मलेश्वर
wildlife sanctuary, Sri Lanka Maleshwar Wildlife Sanctuary, and these are the important points from the examination point of view. Okay, so this is done here, right? So now I will move further on the next slide. Let me move on to the next slide now, right? Next is a white-backed vulture, right? Vultures वो होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, डेड कार्कासेस को खाते हैं, राइट? जिसको हम गीद बोलते हैं, राइट? पंजाबी में हम इसको गिरज कहते हैं, गीद बोलते हैं. These are the vultures, right? So white-backed vultures, right? So as far as the white-backed vultures are concerned, right? These includes eagles, right? Buzzards and hawks, etc. Right? This is called African white-backed vulture also. ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अफ्रीकन white-backed vulture भी कहते हैं इसको, right? This is critically endangered. ये तो हम इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये critically endangered है, otherwise हमने इसकी बात नहीं करनी थी, right? So that is the point. Closely related to European Griffon vulture. एक यूरोप की वल्चर स्पीसीज है, ये उससे बहुत मेल खाती है ग्रेफन वल्चर के साथ. कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि वेदर इट इज अ यूरोपियन ग्रिफन वल्चर और इट इज ए व्हाइट-बैक्ड वल्चर. Vultures are scavengers, right, and feed from the carcasses of animals also, right? So ये scavengers होते हैं, ये dead animals के जो carcasses है उनको खाते हैं. Major cause of their population fall, one is habitat loss, right? जो जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर जो vegetation है वो कम हो रही है usually, that is the habitat loss. Second is electrocution due to the power lines, right? So sometimes इनको करंट लग जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है. तीसरा है फॉरेस्ट फायर्स, राइट? जब जंगल में आग लगती है तब भी इनकी डेथ हो जाती है. सेकेंड इज टॉक्सिक पेस्टिसाइड, राइट? टॉक्सिक पेस्टिसाइड बेटा एक पेस्टिसाइड का नाम है, राइट? फुराडेन. दिस इज यूज्ड इन कीनिया, राइट? और ये पेस्टिसाइड जब हम यूज करते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, तो वो चारा जब हम हमारे एनिमल्स को देते हैं, राइट? फीड, राइट, मीन्स द फीड, right? When that is fed to the animals, so then the residues of the pesticide, right? So that enters into the bodies of the animals, right? And when these vultures eat the dead animal, right? So then it passes on to these vultures, right? And when the toxic chemical passes into the vultures, right? Then it, you can say, affects their kidneys and liver functioning, and that is why इनकी डेथ हो जाती है, right? They die. So this is the reason, right? So इंडिया में डिक्लोफेनिक है जो हम इंजेक्शन देते हैं बफलोस को, right? So particularly responsible for the loss of the Asian vultures. Asian vultures का भी लॉस हो रहा है, वो डिक्लोफेनिक की वजह से हो रहा है, right? Toxicity due to higher levels of lead, कैडमियम, जिंक एंड कॉपर, राइट? सो ये भी एक कारण है कि हैवी मेटल्स की जो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से भी डेथ हो जाती है, राइट? सो प्लीज नोट द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. white-backed vulture, critically endangered species, right? So it is called African white-backed vulture also, right? It resembles with the European griffon vulture. Vultures are scavengers. They feed on the dead animals, right? Their population is falling, and reasons for their population fall: habitat loss, electrocution, बिजली का करंट, and forest fires, जंगल में जो आग वगैरह लग जाती है, and use of the toxic pesticides. Because हम इस पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं, इसका लॉस की वजह क्या है? कीनिया में
जो ये पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, राइट, फोरेडिन, राइट, सो ये इसकी वजह से होता है, राइट। ये डिक्लोफेनेक उधर नहीं होता, ये हमारे इंडिया में होता है, ये एशियन वल्चर्स को नुकसान करता है। एंड मोर ओवर द कंसेंट्रेशन ऑफ द heavy metals, that is another reason, right? So these are the important reasons behind the fall of the population, right? And these points were important from the examination point of view, right? I hope you have noted these points, right? So the next slide, let me move on to the next slide now. That is the red-headed vulture, right? ये भी उसी किस्म का है, vulture है, right? Scavenger है, dead animals के carcasses को खाता है, right? So red-headed vulture, so known as Asian king vulture also, इसको हम Asian king vulture भी कहते हैं, और इसको हम Indian black vulture भी कहते हैं, और इसको हम पौंडीचेरी वल्चर भी कहते हैं, इसके ये नेम है, राइट। सो इट्स रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर, इंडिया से लेकर के ये सिंगापुर तक पाया जाता है, राइट, मीन्स म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, etc. And now it is restricted to northern India only. अब इसकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि नॉर्थ इंडिया में ही मिलती है, मेनली फाउंड इन द ओपन कंट्री, ओपन कंट्री मीन्स खुली स्पेसेस में मिलता है, राइट, कल्टीवेटेड लैंड्स में और सेमी डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है, राइट। वेटरनरी मेडिसिन लाइक डिक्लोफेनिक, राइट, and carprofen, right, flunixin, right, ibuprofen, and phenylbutazone are responsible for decline in their population, right, because इनका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो एनिमल्स में रहता है, और जब ये एनिमल्स का पिंजर खाते हैं, उनका कार्कासस को जब खाते हैं, तो ये इनकी बॉडी में जाता है, वही किडनीज एंड लिवर को अफेक्ट करता है और इनकी डेथ हो जाती है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, राइट, राइट, एंड meloxicam, right, is considered vulture safe veterinary medicine, right? So please note this point that diclofenac has been banned in India, you know, इसको बैन कर दिया गया है। What is the alternative of diclofenac medicine, right? Which is vulture safe, right, which does not harm the vultures, that is the meloxicam. This is considered vulture safe, you can say, veterinary medicine, okay? So as far as the examination purpose, the name red-headed vulture, this is critically endangered, right? मैं यहाँ लिख देता हूँ, this is critically endangered, CR means critically endangered है, right? इसके ये names हैं, range from India to Singapore. Now it is restricted not to northern India, critically endangered है, northern India में ही मिलती है, mainly found in open country, cultivated and semi-desert areas. चलो, the main reason behind the loss of population of this vulture species, that is the use of the toxic veterinary medicines, right? So, and the veterinary medicine which is vulture safe, which is considered vulture safe, that is the meloxicam. Okay, so these are the important points here. Please don't forget these points, right? So ये आपका important है points. Okay, so next slide. Let me move on to the next slide, right? So next is a white-bellied heron, right? So this is the image of this species, white-bellied heron की ये image है जो आप देख रहे हो, right? So known as imperial heron also, right? Its range of habitat extends from foothills of eastern Himalayas in India and Bhutan, right, to northeast Bangladesh and Burma. इन एरियाज में मिलता है ये, occurs mainly in wetland habitats, ये wetlands में मिलता है, right? Wetland क्या होता है बेटा? इसको भी आपको मैं समझा देता हूँ, right? Let's suppose ये है
राइट, और यहाँ है लैंड, राइट, और यहाँ है बेटा ओशन और सी, राइट, ओशन और सी, राइट, ओशन और सी लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है राइट। एंड बेटा वेटलैंड क्या है बेटा? दिस इज ए ट्रांजिशन बिटवीन द लैंड एंड द सी, राइट। सो यहाँ पर लैंड वाली करेक्टरिस्टिक्स भी और सी वाली, मीन्स मिक्स ऑफ लैंड एंड वाटर, राइट। सो राइट, सो लैंड इनंडेटेड इन वाटर मिलेगी, right? So that is the point here. So that means wetland, right, is a transitional area between the land and the, we can say, ocean or sea, right? So please note it that what do we mean by the wetlands, right? So major threats to the population of this species, that is the poaching, habitat destruction, right? In 2014, nesting site of the bird was found in Namdapha National Park, right? Where is the Namdapha National Park? In which state? Please tell me. Yesterday we discussed in class. Namdapha National Park is in the state of Arunachal Pradesh. Yesterday I told you, right? मिश्मी हिल्स एंड पटकाई बम के बीच में जो वैली रीजन है उसमें पाया जाता है ये, राइट। सो प्लीज नोट दीज पॉइंट्स, राइट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ओके, सो ऐसी चीजों पे पर्टिकुलर ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, यही यूपीएससी आपको फंसाती है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, बट वो देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है चीजों को, उन्होंने ये देखना होता है, राइट। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, funded a 3-year project to document the forest behavior of the bird, right, कि ये क्या खाता है, राइट, इसका बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसकी कंजर्वेशन के लिए 3 साल का प्रोजेक्ट बनाया है, right? So, important points from examination purpose. White-bellied heron. This is critically endangered species. Here means critically endangered species, right? So, it is mainly found in the eastern parts of the Himalayas, India, Bhutan, and Bangladesh, thus, and Burma, right? Burma means Myanmar, right? In these areas, it is found. It likes wetland habitats, right? What is wetland? It's a transitional area between the land and the sea, right? So main reason to the threat is poaching and habitat destruction, right? And इसकी जो nesting site है, that was noted in the Namdapha National Park. Namdapha National Park is in Arunachal Pradesh, right? It is in Arunachal Pradesh, right? Between Patkai Hills, right? Between Patkai Hills, right? And Mishmi Hills, right? And Mishmi Hills, okay? So these are the points between Patkai Hills and Mishmi Hills, okay? So that's the point basically. So ये आपको examination के लिए points note करने होंगे, right? So ये आपका important था इसमें, right? So अब next slide हम देखते हैं. As far as the next slide is concerned, that is the slender-billed vulture, right? So slender-billed vulture, right? इसकी जो beak है उसको लेकर के ये है कि इसकी beak की एक particular shape है. That is why it is known as slender-billed vulture, right? So about this vulture species, what is important? One is native to sub-Himalayan regions of Southeast Asia, right? साउथ ईस्ट एशिया के जो हिमालय के नीचे वाले पार्ट है वहां मिलता है. दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन वल्चर्स. इंडियन वल्चर से ये डिफरेंट है, राइट. इंडियन वल्चर विच इज आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज फाउंड ओनली इन साउथ ऑफ गंगा एंड ब्रीड्स ऑन द क्लिफ्स, राइट. क्लिफ्स होता है रॉक्स के जो ये रॉक्स के ऊपर यूजली, राइट, आप अपने एग्स वगैरह ले करती हैं. जो इंडियन वल्चर है गंगा के साउथ में ही मिलती है मेनली, राइट. सो स्लेंडर बिल्ड वल्चर इज फाउंड अराउंड ट्रीज एंड नेस्ट्स
इन द ट्रीज। ये ट्रीज पे अपना नेस्ट बनाती है, राइट, और ये वहां पर अपना घोंसला बनाती है, और ये वहां पर अपने एग्स लेकर के। दिस इज द डिफरेंस, राइट। इट्स अ फ्रॉम गंगेटिक रीजन, राइट। सो गंगा रिवर के रीजन से लेकर के ये फिर नॉर्दर्न ओडिशा तक पाई जाती है, राइट, नॉर्दर्न ओडिशा तक, एंड फ्रॉम असम इन द ईस्ट टू हिमाचल प्रदेश इन द वेस्ट, राइट। सो अगर हम इसका नॉर्थ टू साउथ देखते हैं तो गंगेटिक प्लेन, राइट, मीन्स गंगा प्लेन्स, राइट, गंगा प्लेन्स टू द नॉर्दर्न ओडिशा, तो यहाँ तक इसकी रेंज है इंडिया में, ओके, नॉर्दर्न ओडिशा। और अगर हम इसका ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, राइट, तो फिर क्या रहेगा, इसका ईस्ट टू वेस्ट देखना है तो क्या रहेगा, इधर जो हम ईस्ट की तरफ देखते हैं तो असम रहेगा, राइट, असम, राइट, एंड वेस्ट की तरफ देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश तक चला जाता है इसका जो रेंज है, राइट। सो दिस इज अबाउट इट्स रेंज, ओके। सो देयर कंजर्वेशन एफर्ट्स इंक्लूड, राइट, इनकी कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिक्लोफेनिक इज बैन्ड इन इंडिया एंड कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल एंड एट पिंजौर इन हरियाणा, राइट। हरियाणा में पिंजौर गार्डन है, राइट, वहां पर इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, राइट। सो कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ दिस वल्चर इज डन, राइट, मीन्स वहां पर एग्स में से जो हैचिंग करके बच्चे निकलते हैं उनको फिर वो अपनी देख रेख के अंदर रखते हैं और बाद में उनको फिर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द कैप्टिव ब्रीडिंग, राइट। सो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, सिलेंडर बिल्ड वल्चर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, 1 पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन। दूसरा सब हिमालयन रीजन में मिलती है, राइट, एंड तीसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, राइट, कि इसकी ये रेंज है जो मैंने यहाँ लिख दी, गंगा प्लेन से लेके नॉर्दर्न उड़ीसा, असम से लेके एचपी, एंड इसकी कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक तो डिक्लोफेनिक को बैन किया है और दूसरा क्या है, इसके जो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, राइट। इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग कहाँ पर हो रही है, राइट, वन इज पिंजौर इन हरियाणा, सेकंड इज वेस्ट, राइट। सो 2 जगह पे इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग हो रही है, राइट। इसकी कंजर्वेशन के लिए, इसको बचाने के लिए, इस स्पीसीज को, राइट, अलोप होने से बचाने के लिए, एलिमिनेट होने के बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए इसकी जो कैप्टिव ब्रीडिंग है, सो दैट्स बीइंग डन, ओके। सो दैट इज इम्पोर्टेंट हियर, राइट। सो मुझे लगता है आज हम यहीं पर लेक्चर को छोड़ देते हैं, राइट, बाकी कल हम कर लेंगे, राइट, बिकॉज ज्यादा हो जाएगा फिर आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, राइट। एंड आज के लेक्चर में जो भी नए स्टूडेंट थे, पर्टिकुलरली अनीशा एंड एक स्टूडेंट था वो जो रेडमी 2 वाला मुझे लगता है, राइट। सो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना मुझे आज की क्लास के बाद, अगर आपको कैसा लगा, राइट, मुझे प्लीज अपना व्हाट्सएप मैसेज पे बता देना, राइट, सो दैट मैं आपके अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज करनी होगी तो आई वुड बी एबल टू डू दैट, राइट। सो ये चीज है। अगर अब अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर क्वेश्चन